one problem I was solving in the last class, example 1. Yes, sir. The problem was this: find a equation of the common tangent. Example 1. Board is visible? Yes, sir. Yes, sir. Find a equation of a common tangent to the circles. In the last class, I have discussed there are 4 common tangents possible. 2 called transverse and 2 called direct tangents. So problem was find the equation of the common tangents. To the circles. Circles आपके given थे x square plus y square minus 24x plus 2y plus 120 is equal to 0, and x square plus y square plus 20x minus 6y minus 116 is equal to 0, है ना? तो इन इक्वेशंस की हमें कॉमन टेंजेंट्स प्लॉट करनी है, फाइंड करनी है. तो फर्स्टली वी हैव टू लोकेट योर सर्किल. वेयर इज द सर्किल? तो I can take, like, suppose these are the tangents. 2 circle I can locate here. 1 circle is here, है ना? या जब आप सर्किल को सॉल्व करेंगे तो ये सर्किल आपके आ रहे हैं इस तरीके से, which is touching like this. And this is the line which I can join these, so it will be crossing the center, है ना? ये you can plot it in this way. तो सेंटर हमने इसका सर्किल का सेंटर रेडियस फाइंड किया था, तो व्हाट इट वाज कमिंग, दिस वाज कमिंग 12, -1. This center was coming -10, 3. This was coming how much? 15 and 5 and 15. 5, है ना? So by 5 the and 15. yes. So by the concept that these points will be divided, this is A dash, so they will be dividing this line joining this AC. Suppose this is C dash, internally and externally, है ना? So we got the coordinates of A also. So A के coordinate was coming 23, -3 by the external intercept, and internally intercept it was coming A dash 13/2, 13/2, this A dash was coming 13/2, ये अपने कर रहा था last class में. After this, now because I want to find equation of common tangents, so you can see here 4 tangents, 1, 2 and then 3, 4, है ना? You can plot 2 tangents also transverse. So I have to find this common tangent equation. So firstly I am taking, suppose, equation of a line passing through this. So equation of a line passing through A. So this is what you have, a line, you can find y minus y naught. So y minus y naught is 3 m x minus x naught. And this is the, or you can write in standard form mx minus y minus 23m minus 3 is equal to 0. Okay, तो ये इस लाइन की इक्वेशन आई पासिंग थ्रू दिस. अब दिस लाइन इज व्हाट, इस पॉइंट से तो पास होने वाली कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस हैं. तो आई वांट टू फाइंड इफ पर्टिकुलर दिस लाइन, तो व्हाट आई विल टेक, if this line touch the circle, suppose this circle, so what I will take, if this line touch the first circle, ये जो आपका फर्स्ट सर्किल था, ये फर्स्ट सर्किल है, touch the first circle, so what will happen, if I will draw a perpendicular line, it will be, है ना? यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, और ये डिस्टेंस कितनी होगी
5 है ना. Then the perpendicular distance from this, क्लियर है ना बात भाई. यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा ये आपकी यहाँ से जो आएगी इट विल बी इफ इट इज सेंटर. सो ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस 5 है आपकी, ये भी रेडियस के इक्वल होगी 5 के. सो देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इफ इट इज C dash suppose of the line from the center 12 comma minus 1, this is कितना होगा 5 है ना, रेडियस के इक्वल होगा जो भी रेडियस है. सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा. इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन व्हाट इज द फॉर्मूला, मॉड ऑफ पुट द पॉइंट हियर m into 12 माइनस y की जगह पे रखेंगे हम ये पॉइंट, तो y is 1 in -1, तो y की प्लेस पे आई विल पुट दिस -1 into -1 minus constant as it is minus 23m minus 3 अपॉन नीचे क्या होता है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है ना. कोफिशिएंट y is this will equal to how much 5. मॉड ले रहे हैं हम तो पॉजिटिव डिस्टेंस आई एम टेकिंग ये ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास ax plus by plus c is equal to 0, so you want to find the perpendicular distance from some point x dash y dash, so what is the formula perpendicular distance का, this is the formula ax square plus b हाँ. x square plus c होता है upon mod of ax dash plus by dash plus c upon अंडर रूट a स्क्वायर प्लस है ना. ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, इज नॉट न्यू फॉर्मूला. So here you can solve it. So it will be equation देखो 12m minus 13m plus 1 minus 3. So how much it is coming? So minus 13 and this way minus 11m mod of minus 11m. mod इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी ऑलवेज टेक पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव साइन ले देंगे. एंड -1 plus 1 minus 3 minus 2 अपॉन और स्क्वायर रूट है तो हमेशा पॉजिटिव ही है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 5 है ना. और आई कैन सॉल्व इट, माइनस साइड बाहर ले लें हम तो माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा. so this implies that 11m plus 2 is equal to 5 times under root m square plus 1. ओके माइनस हमने बाहर लिया तो मॉड से माइनस बाहर आएगा तो -1 is +1, तो इट विल बिकम 11m plus 2. now you can do squaring both sides. okay, I want to solve and I want to find what is the value of m. so squaring both sides, when you will square it will give you equation 121m square plus 2 to the 4 plus 2 to the 4 and 1 44m is equal to 5 square is 25, so 25m square plus 25. okay, now you can arrange the terms. the quadratic equation बनकर आएगी आपके पास देखिए 96m square plus 70 कितना 44m 44 है ये 44m minus 21 is equal to 0. कैलकुलेशन कर लीजिए आप, m का टर्म क्योंकि एक यही आ रहा है बस. इसके फैक्टर्स इफ यू विल डू फैक्टर्स यू कैन सी 21 into 44 इसे फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे 4m plus 3 and 24m minus 27 is equal to 0. so this implies that m is equal to -3/4 and 7/24. so two roots are there. two roots क्यों आ रहे हैं you know,
Why two roots is coming? Because this line passing through this, है ना, touching the circle actually at 2 points. एक यहाँ पर टच करेगी और एक यहाँ पर. So that's why this quadratic equation is giving you two roots. ठीक है? You can see here because it's touching at 2 points. So two slopes का मतलब क्या हुआ कि passing through this, touching the circle, there will be 2 points. क्योंकि ये 5 आया है, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डालता तो ये भी 5 आएगा ना. इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये इक्वेशन आती है. So in this way you can find it. So I got two roots. I mean two roots को हम इक्वेशन में रखेंगे तो it will give you two equations. So putting these values, putting the values of m in this equation, ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन है ना. इसको हमने कोई नंबरिंग नहीं करी थी यहाँ पर. चलो 1 कर दे रहा हूँ यहाँ पर. फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर इन 1 वी गेट, तो टू इक्वेशंस मिलेंगी आपको. पहले आपने -3/4 रखा तो यू विल बी गेटिंग 3x + 4y = 57 फॉर दिस, एंड फॉर 7/24 you will be getting 7x - 24y = 233. ठीक है, ये टू इक्वेशन आ गई है. ये जो इक्वेशन थी, तो टू इक्वेशन अलग कौन सी हुई? अगर आपके पास ये सपोज ए पी और ये पी डैश है तो यू गॉट ए पी एंड ए पी डैश. ये ए पी की इक्वेशन हो गई सपोज, तो ये ए पी डैश की. टू टेंजेंट्स आना है. क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. तो अभी तो आपके पास टू इक्वेशंस आई हैं. ये अब टू मोर इक्वेशंस आर पॉसिबल. कैसे? क्यों भाई? Sir, the chord lines are touching to bigger circle. जो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स होंगे ना, ये तो कॉमन टेंजेंट्स थी. सिमिलरली यू कैन फाइंड द ट्रांसवर्स टेंजेंट्स. अगर ये यहाँ से मैं इस पॉइंट से पास होते हुए जाएगी तो ये यहाँ कुछ इस तरीके से आएगी फिगर. क्योंकि थोड़ा सा ये रफली बना रहा हूँ मैं, तो इसलिए ऐसा आ रहा है. यहाँ से टच करती हुई और ये इस पॉइंट को क्रॉस करता हुआ ये यहाँ निकलेगी, है ना. तो दीज टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स आर आल्सो देयर. So for these two transfer tangent, what I will do now, I will find equation passing through this point, है ना. अभी हमने a लिया था तो इक्वेशन ये आई थी आपके पास. यहाँ पर हमने क्या लिया था? passing through a. Now I will take equation of a line passing through a dash, है ना. सेम प्रोसीजर बिल्कुल आप करेंगे. Now equation of a line passing through a dash, equation of a line passing through a dash. A dash means 20 क्या है? 13/2, 0. ठीक है. In the same way you will be solving same procedure. बिल्कुल इसे आप लाइन पे रखेंगे तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y, इसमें y + 3 था, यहाँ की इक्वेशन आ जाएगी y - 0 = m × 13/2. you will be solving it to get two roots. तो आपको फाइनली मिल जाएगी टू इक्वेशंस. 3x - 4y + 26 = 0, 7y + 24x - ओके. सिमिलरली ये कर लेंगे पोर्शन जो मैंने लिखा है डायरेक्ट, या करूं एक्सप्लेन से? सर कर लेंगे हम लोग. ठीक है जी सर, सेम है बिल्कुल, कोई ऐसा उसमें न्यू कंसेप्ट नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है. तो इट वाज वन प्रॉब्लम, थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए कि हमें हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. तो यू आर गेटिंग 4 टेंजेंट्स, है ना. तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ द सर्कल्स आर लोकेटेड. क्योंकि यहाँ पर सर्कल्स आपके देखे आपने कि इस तरीके से लोकेटेड थे. यू गॉट 4 टेंजेंट्स. ये अगर सर्किल आपके डिफरेंट पोजीशंस में आते तो आपको टेंजेंट्स कम भी मिल सकती थी, है ना. ये सर्किल अगर टचिंग कर रहे होते इस तरीके से आते तो जब आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे यू कैन प्लॉट, तो उस केस में आपको सिर्फ 3 टेंजेंट्स मिलती, 1 2 3, है ना. तो वो डिपेंड करेगा कैसे आपके पास आ. तो फर्स्ट थिंग विल बी व्हाट, यू जस्ट लोकेट योर सर्किल्स.
next topic we have parametric equation of a circle. 7.8 page 101 parametric equation of a circle. हर कर्व को एवरी कर्व वी कैन रिप्रेजेंट बाय पैरामीट्रिक इक्वेशंस. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर एक्चुअली इज अ पैरा व्हिच ट्रेसेस द पाथ. अगर आप कोई कर्व प्लॉट कर रहे हैं, सपोज यू हैव अ कर्व, इट इज मूविंग लाइक दिस है ना, तो क्या हो रहा है ये कि इफ यू हैव अ पैरामीटर टी, से मैं अगर आर टी से रिप्रेजेंट कर लूं, तो दिस इज अ कर्व व्हिच इज मूविंग. तो टी जैसे जैसे मूव करेगा, आई विल गिविंग द वैल्यू ऑफ टी, दिस कर्व विल बी कमिंग इन द पिक्चर. इस तरीके से कोई भी कर्व हो सकता है. एक सर्किल ले लें आप, तो सर्किल भी इज अ पाथ, है ना. एवरी कर्व इज अ पाथ ऑफ सम पार्टिकल इज मूविंग इन सम डायरेक्शन. अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये पार्टिकल क्या करेगा? सर्किल करेगा. तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? अगर आपको याद हो, किसी को याद है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल? ए cos थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, है ना. आई जे से हम लिखते थे इसे. आई जे आर यूनिट वेक्टर्स. तो जो इसके पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं. x इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा. यहाँ थीटा पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, है ना. दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन. आपने जरूर पढ़ा होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब पढ़ी होगी सर्किल. पढ़ी थी नहीं है? अब देखो यहाँ पे जब थीटा सॉरी यहाँ थीटा लिखो, फिर पढ़ा है. जैसे r0 है, अब r0 विल बी व्हाट? पुट थीटा 0, a cos 0 a sin 0. cos 0 इज हाउ मच? 1. यू विल बी गेटिंग a, है ना. तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, ये आपकी i के अलग हुई j के, तो a आ जाएगा. फिर आपने पुट किया सपोज r पाई बाई 2. r पाई बाई 2 इज हाउ मच? cos पाई बाई 2 a sin पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 0, a sin पाई बाई 2. तो ये आएगा, ये था a i, ये आएगा a j. a j का मतलब हेयर, है ना. तो दिस विल बी योर a. इस तरीके से आप ज्वाइन, ऐसे आप 0 to पाई बाई 2 में यू कैन पुट सम वैल्यू. सपोज पाई बाई 4. पाई बाई 4 इज हाउ मच? a बाई रूट 2 i प्लस a बाई रूट 2 j. ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा 1 बाई रूट 2, है ना. बोथ x एंड y सेम इज द. इन दिस वे व्हेन यू विल बी प्लॉटिंग, ये आपको फर्स्ट देगा. ऐसे पाई बाई 2 से आप पाई पे चलेंगे, इट विल बी गिविंग दिस, देन दिस, देन दिस. इट विल गिव यू द कंप्लीट सर्किल. तो 0 to 2 पाई में क्या देगा? कंप्लीट सर्किल. अगर मैं 0 to 4 पाई लगा दूं तो क्या देगा ये? इफ आई एम रेस्ट्रिक्टिंग 0 to 4 पाई, 0 to 4 पाई में क्या है? इक्लिप्स. इक्लिप्स क्या होता है? ये इलिप्स तो होता है. देखिए सर वो डबल सर्किल बन जाएगा ना. हाँ, जैसे आपने r 2 पाई रखा, देखिए a cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई. a cos 2 पाई तो 0 होता है, cos 2 पाई इज 1. तो r 2 पाई आपका a i आ गया. तो आप वापस यहाँ लौट गए. तो जब आपने 0 से 2 पाई एक साइकिल पूरी करी, यू स्टार्टेड फ्रॉम वेयर यू रीच एट द सेम पॉइंट. अब आप 2 पाई से आगे जाएंगे. जैसे सपोज 2 पाई से आगे आपने कितना गया? 2 पाई प्लस पाई बाई 2. तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 फिर ये पॉइंट आ जाएगा. So it will give you the same circle but 2 rounds. इसका मतलब क्या हुआ कि you are moving in 2, है ना. सर्किल सेम रहेगा. If theta is 0 to 4 pi, only distance will be doubled. Distance कितनी हो जाएगी? 4 pi r. सर्किल सेम प्लॉट होता रहेगा. इवन आप थीटा टू 8 पाई कुछ भी कर दें, तो ओनली राउंड नंबर ऑफ राउंड्स विल बी इंक्रीजिंग, है ना. पाथ ये सेम आएगा, आपका पाथ चेंज नहीं होगा. चेक कर सकते हो. तो इसलिए जब हम सर्किल लिखते हैं तो वी जस्ट पुट अ रेस्ट्रिक्शन कि वी आर टेकिंग ओनली 1 राउंड, क्योंकि 1 राउंड में हमें एक सर्किल मिल जा रहा है. ओके, सो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए. x is equal to a cos थीटा, y is equal to a sin थीटा, थीटा लाइंग 0 to 2 पाई. ठीक है, बताइए. तो बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन वी कैन ट्रेस द सर्किल.
So one example is there. Any curve I can represent by a parametric equation. हर कर्व को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. So that the parametric equation x is equal to a times 1 minus t square over 1 plus t square, y is equal to 2at over 1 plus t square represents a circle of radius a. ठीक, यहाँ पे शो करना है कि ये जो है एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा ऑफ रेडियस ए का. ठीक, इससे क्या पता चला, ये तो हम शो कर देंगे. चलो, इससे ही पता चला कि जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी वो हमें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना. पैरामीट्रिक एक तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पर ये भी शो कर, ये भी कह रहा है पैरामीट्रिक इक्वेशन. देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हाउ मच, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इट इज हाउ मच, ए स्क्वायर. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज ए. तो ये इस सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन थी. अगर हमने स्क्वायर करा तो ये आपको इस फॉर्म में दे रहा था, है ना. तो ये पर्टिकुलरली दिस सर्किल था. आप एक्स वाई को स्क्वायर करेंगे आपको आएगा, इस सर्किल की इक्वेशन होती है. सेम थिंग इट हियर, यू हैव टू शो दैट दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस ए. ओके, तो वन वे इज दैट कि आप यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें, इसे सॉल्व कर लें और आप देख लें क्या आ रहा है. अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ कैंसिल होने चाहिए. वन वे इज व्हाट कि इसे हम थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक assumption, है ना. क्योंकि अगर सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. तो यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो व्हाट आई कैन पुट हियर, लेट t इज इक्वल टू tan थीटा रखते हैं, क्योंकि नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है. अगर 1 माइनस टी स्क्वायर होता तो क्या रखता मैं, cos थीटा. cos थीटा. cos थीटा या sin थीटा, क्योंकि हमें मालूम है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाता है sin स्क्वायर थीटा ना. इससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये चीजें आपने इंटीग्रेशन में खूब करी. यू हैव डन दिस थिंग इन इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करा करते थे फ्रैक्शन वाले. और जब 1 प्लस टी स्क्वायर होता था तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखते थे, ताकि ये sec स्क्वायर थीटा बन जाए, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए. ठीक है, तो हमने tan थीटा इज इक्वल टू t इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया, तो व्हाट विल हैपन. सर यस, sin थीटा cos थीटा कब रखते हैं, अगर माइनस होता है यहाँ पे, क्योंकि उससे ये होता है कि 1 माइनस टी स्क्वायर का टर्म क्या हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है यहाँ पे, है ना. एक ही टर्म आ जाता है, ये डिफरेंस का टर्म खत्म हो गया, सिंगल टर्म आ जाएगा. इसे आप कैंसिल कर सकते हैं फ्रैक्शन में. जब प्लस होता है तो tan थीटा रखते हैं नीचे. ओके, ओके सर. हाँ, तो मैंने इसलिए t इज इक्वल टू tan थीटा चूज किया, क्योंकि दोनों में मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसलिए हमने tan थीटा चूज किया. तो इससे व्हाट विल हैपन, यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज sec स्क्वायर थीटा. Similarly, y is equal to 2a tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, है ना. अब यहाँ पे इसको हम साइन कॉस में लिख के और इजी कर सकते हैं, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे. देखिए क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये बन जाएगा a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा नीचे एलसीएम में चला जाएगा, है ना. और ये कितना होता है, 1 होगा सर. ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि Yes. sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, है ना. तो ये आप, और ये कितना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा. 2 थीटा. तो देखो x हमारा इजी टर्म में आ गया बिल्कुल. सिमिलरली y,
y वाज 2a tan थीटा, इसको भी sin थीटा अपॉन cos थीटा में ब्रेक कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा cos थीटा, एक टर्म कैंसिल होगा यहाँ पे, है ना, क्या बचेगा 1 अपॉन sec थीटा, उसे ऊपर ले जाऊंगा तो 2a sin थीटा cos थीटा, इट इज हाउ मच सर a A sin 2 theta. sin 2 theta. यस। तो यहाँ से आपका एक्स वाई थोड़ा इजी टर्म में आ गया। अब स्क्वायरिंग, अब हमें शो करना है कि सर्किल है, तो शो करने के लिए क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो कितना आसानी से आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, है ना, सेम एंगल होते हैं तो आपका 1 हो जाता है। तो दिस इज व्हाट, सो दिस इंप्लाइज दैट इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल। Circle. तो सर्किल को हम, इसका मतलब ये कि डिफरेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक, सेम सर्किल को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ऐसे भी, ये भी सर्किल की रिप्रेजेंटेशन है ना, लेकिन ये हमारी थोड़ा इजी होती है, प्लॉट कर सकते हैं इजीली वैल्यू करके, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ले लेते हैं, लेकिन दिस इज आल्सो सर्किल। यहाँ पर अगर आप टी की डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे तो आप देखेंगे ये भी आपके सर्किल के पॉइंट्स आ रहे होंगे, यहाँ पे टी की वैल्यूज उन्होंने गिवन नहीं है क्या है, लेकिन जब आप टी को रखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे मैं टी इज इक्वल टू 0 लूँ यहाँ पे, मान लो टी 0 पे एक्स कितना आएगा, ए, और वाई 0, है ना, कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं टी को 1 ले लूं तो सर x एक्स 0 और वाई 1, 2a 1 अपॉन, है ना, तो ये Yes, पॉइंट sir. मिल जाएगा। तो ये भी अगर आप देखेंगे एक सर्किल ही प्लॉट कर रहा होगा, यहाँ पर अगर हम रखें वैल्यू। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ऐसे ही वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, एग्जाम्पल 9, पेज नंबर 103, find the length, find the length of the common chord of the circles x minus a whole square plus y square is equal to a square and x square plus y minus b whole square is equal to b square, and prove that the equation of the circle whose diameter is this common chord is a square plus b square x square plus y square is equal to 2ab bx plus ay, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, देखिए तो यहाँ पर टू थिंग्स आर देयर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल। अगर हम दो सर्किल प्लॉट करें, सर्किल आपके बहुत इजी और फैमिलियर सर्किल है, क्या है सर्किल ये बताइए, अगर मैं इसको एक्स वाई एक्सिस पे बनाऊं तो फर्स्ट सर्किल विल बी व्हाट, देखिए दिस इज योर एक्स वाई, फर्स्ट सर्किल का सेंटर क्या है बताना जरा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल, अरे सेंटर क्या होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, सेंटर इज
a कॉमा A, 0, zero. a कॉमा 0 0, कहाँ sir. आएगा x एक्सिस पे, और रेडियस Yes, भी sir. ये है, Exactly. रेडियस भी ये है। तो अगर आप यहाँ पर बनाएंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी Radius का सर्कल बनाएंगे। हाँ, एक सर्किल बनेगा आपका जिसकी रेडियस भी a है और सेंटर, A होगी। तो वो कुछ इस तरीके के तो बनेगा। ऐसे बना देते हैं, चलो दिस इज द सर्किल, है ना। और दूसरा सर्किल देखना जरा, क्या इसका सेंटर कहाँ है, 0, B। 0, B. 0, p पे, और रेडियस b है। तो अगर इसे हम B बनाए है। तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, है ना। ये आएंगे इस टाइप से, तो आएगा बताओ। इसका सेंटर ये होगा 0, b, एंड दिस इज द सेंटर a, 0। दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, और एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज दिस इज a, दिस इज ओरिजिन। नाउ इफ यू विल ज्वाइन दिस OA, तो ये जो कॉर्ड आएगी, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज कॉमन कॉर्ड। यही पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल्स दिस, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये आपका सर्किल हो गया जी फर्स्ट वाला, दिस इज योर सेकंड सर्किल। तो लेंथ निकालनी मुझे, व्हाट इज द OA। चलो, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन कुछ जो है वो मिल गई है। C1 था आपके पास, इट इज C2। so what I can find here the equation of a common chord, है ना। बाकी तो लैंग्वेज आप फिगर से लिख सकते हैं, that both the circles intersect at origin and A, है ना। A का पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे A निकल आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, है ना। कॉमन कॉर्ड जो होती है, व्हाट इज द कॉमन कॉर्ड, यहाँ पर एक कंसेप्ट है, द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल्स वी सब्ट्रैक्ट वन सर्किल फ्रॉम अनदर टू गेट कॉमन कॉर्ड of two circles. We subtract one circle from another. तो इससे आपको कॉमन कॉर्ड देखो, एक तो हमें एक है ए का, अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लें इन 2 पॉइंट का, अगर हम इंटरसेक्शन सॉल्व करके ए निकाल लें तो वी कैन फाइंड ए, वो पता है तो वो इसकी डिस्टेंस निकल आएगी, है ना। एक तरीका तो ये है। अब उसके लिए क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो हियर इट विल बी कमिंग हाउ, देखो एक तरीका ये भी, कैलकुलेशन करके सॉल्व करके निकालें तो उससे आपके पास कुछ वैल्यू निकल आएंगी एक्स वाई की, 2 वैल्यूज निकल के आएंगी इनफैक्ट। और वन मेथड इज व्हाट, कि यहाँ पर हम कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लें। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, मान लो अगर हम सॉल्व करके एक ही कोऑर्डिनेट निकालना चाहे मान लो, ठीक है, इस कंसेप्ट को ही लगाते हैं बाद में, ये वाला तरीका लगा के देखते हैं, है ना। मुझे थोड़ा सा बताइएगा इसमें, क्वेश्चन मैं कुछ करूंगा तो इसे कैसे सॉल्व करें भाई। वी हैव, इसको ओपन कर लो, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या करें यहाँ पर, कुछ है तरीका निकालने का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, हैं इस वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर दें, या सब्ट्रैक्ट कर दें इन्हें। अगर सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके तो क्या होगा। एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो यू विल बी हैविंग व्हाट, ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा यहाँ पे, 2ax 2by माइनस, है ना, ये पहले ये लिख दिया मैंने माइनस ये
minus 2ax is equal to 0. This implies that by minus ax is equal to 0, है ना? तो हमारे पास इक्वेशन निकल आई और ax minus by is equal to 0. तो इससे हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो रेशियो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चल रहा हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x अपॉन y विल इक्वल टू हाउ मच b अपॉन a. क्यों? इससे क्या हम पता चल कर सकते हैं? ये क्या कोऑर्डिनेट बताओ, कैन वी गेट? अभी मैं इस चीज को नहीं यूज कर रहा, इस कंसेप्ट को हटाओ, अभी हमने सॉल्व करा है इसे. अब क्या करें, इससे हमें पॉइंट तो नहीं निकल रहा, इसको वापस पुट करें क्या, स्क्वायर में पुट कर दें, निकल आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं, एक इक्वेशन मिली. अब एक इक्वेशन है और अननोन्स है 2, है ना. आई वांट द एग्जैक्ट. तो ये जो पॉइंट होगा आपका इसमें सेटिस्फाई करेगा, इस पे रख दो उठा के, क्या देखते हैं, है ना. अगर हमने रखा उससे कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी y में आपको. बस ये होगा, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू उठा के रख दूं तो x विल बी व्हाट, बी वाई अपॉन a. इसे हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं अगर इन 1 में, पुटिंग इन 1. इसको अगर मैं 1 कह दूं, मान लो दिस इज 1, दिस इज 2. देखते हैं, क्योंकि ये दोनों में लाई कर रहा है. पुटिंग इन 1 वी गेट, तो 1 क्या था, सॉल्व होके a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू रख दी बी वाई, ये था 1 आपका. एक्स स्क्वायर ओपन करके माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आई एम पुटिंग b अपॉन a वाई, b अपॉन a वाई रखिए जरा इसमें. तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a b अपॉन a वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक ए से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास वाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो इट विल बी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी वाई इज इक्वल टू